We, we have shown the film to a few people already from the industry and from some of our friends and family. And I don't think we can be prouder of any other film. This is by far hits the ball out of the park. So we're very, very happy now. We were nervous about the anticipation that the trailer had conducted. She was very confident. In this case, she's right, as usual. So, hi everyone. Yes, the film is actually releasing tomorrow, but from our end, it's already out there. People are watching it every day. There are 4 to 5 shows that's going on, and we are getting tremendous response on social media and on our telephones, and people, I've not seen this kind of response for any film. And you know, the best part is that everyone's liking it. And I think, so we aren't, I mean, if you expect us to be nervous or anything, no, we aren't. So, like all we all know that a lot of directors have been seeing this film and they absolutely love it. Well, talking about directors, all of us who've seen the movie, that's Tanu Veds Manu, have loved it. And it's not very often that, you know, such jodis come back, but we're very glad that Tanu and Manu are returning. So talking about the chemistry that you guys have, it's fantastic in the film. So we have this application called as GeoChat. Now, since we are Reliance Digital, we have a lot of gadgets here. And we have applications that make these gadgets so helpful. So this application is called the GeoChat. It's like an instant messaging application. And we want Tanu to send you something, Manu, on the application GeoChat. And we have a sticker pack that's there. And there's a special sticker especially for Tanu Veds Manu returns. So let's see that happening. So there you go. She's already telling Manu that she's going to be showing him some new stickers. Fantastic. And there's Tanu Veds Manu returns. So these are the limited edition stickers, and I think after you all see the film, you would love to own these. But download them right now, and download them on GeoChat, and don't miss out on the fun because they're too much fun. Tanu, Datto, and Deepak and Manu, everyone will identify with the characters, and you would love to have the you know, these stickers on your phone and other apps. Fantastic. Well, talking about Tanu Veds Manu returns, Kangana Ranaut is returning to Reliance Digital today to promote this film. Well, this entire store and all the branches are known as the lucky mascots for movies. So, and this is first time for Madhavan, so I would like to ask both of them, how is it returning to Reliance Digital? I do agree, because last time was my first time and I came here during Queen's promotion. I think I'd come on the day Queen had released, and this time around I come just one day before the release. But it's been very lucky for me. And this is a great store, one of the biggest that we have here. And I'm already in shopping mood because there are such great appliances I can see. But yeah, I obviously can't do that. Well, Kangana knows that I am a gizmo freak. I already love all the electronics that I see. And I believe if you're saying it's a good mascot and good luck for all of us, we'll keep coming back for all the films. I am a complete gizmo fan from the very beginning, and I've heard that whenever you come to do these promotions, they give you awesome gifts in the store. So Kangana and I are looking forward to our gifts. Thank you, Reliance Digital. We love the gifts you're giving us. Thank you. So, since you are a gizmo freak, what is that one gadget that would keep returning to your life? What is that one thing that you would keep buying? So is it like
If you're buying an iPhone, would you go again for an iPhone, or is it some other gadget that would keep returning? I find the most advanced and useless gadget that will promise to make my life better, but has no bearing to it, as the most attractive thing. So if I find a watch that can be also a phone, that can also be a tablet, I'll buy it, but nobody in the world ever uses the watch as a phone. Similarly, there are other things. I have glasses that can actually work as a hearing aid. So I have a cap that has an air conditioner inside. So anything that's absolutely useless but high technology is something that I'm crazy about. Fantastic. माधवन, जो आपका ताल्लुक है हिंदी सिनेमा से वो बेहतर होता जा रहा है, ये एक एसोसिएशन लंबा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वक्त के तौर पे तो ये लंबा तक सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये हर एक फिल्म एक बच्चे की तरह होता है. तनु वेड्स मनु जब हमने पहले बनाई थी, बहुत लोगों को इस पे विश्वास नहीं था. उनको लग रहा था कि ये बहुत पुरानी जमाने की फिल्म है, एक 1980s की फिल्म है, लोगों को इसके गाने नहीं समझ में आएंगे, पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त अलग किस्म के गाने चल रहे थे. पर मुझे पूरा यकीन था कि ये जो मिट्टी की खुशबू वाली कहानी है, ये लोगों को बेहद पसंद आएगी. और आज इसका सीक्वल बन रहा है 4 साल बाद, और इतनी उत्साह के साथ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं. और हमने फिल्म देखी है और हमें बड़ा गर्व है इस फिल्म को लेकर. तो मुझे नहीं लगता कि इस सफर को मैं लंबा कहूंगा. ये मेरे लिए इंग्लिश वाला सफर हो सकता है, पर इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं. कंगना, पिछले दिनों आप अपने स्कूल में भी गई थी, अपने कॉलेज में गई थी, और वहां आपने बड़ी मस्ती की. एक तरह से इस फिल्म में भी हम देखते हैं शहर दर शहर बहुत सारे किस्से नजर आते हैं. तो इस बार भी हम तनु वेड्स मनु रिटर्न से ऐसी उम्मीद करें? जी, तनु वेड्स मनु लंदन में शुरू होती है और वहां से कानपुर, उसके बाद पंजाब और उसके बाद झज्जर, एक जो हरियाणा का छोटा सा गांव है, वहां पे उसका क्लाइमैक्स होता है. तो यहाँ आपको, जैसा मैडी ने कहा कि इसमें 4 साल बाद की फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसके साथ में जो एक मिट्टी की खुशबू जिसके लिए लोगों ने तनु वेड्स मनु को पसंद किया था, वो भी इसमें अच्छी तरह से कायम है. आनंद सर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जिस तरह से फिल्में आप करती हैं और हमेशा वो जिक्र करते हैं आपका, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आई थिंक वो एक बहुत ही, अब खासकर जब हमें तनु मनु का इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से, और क्रिटिक्स में भी इन्हें मतलब 4 और 5 स्टार्स ही मिल रहे हैं हर जगह से. तो मुझे लगता है कि आनंद जी विल बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जिनकी अभी इस साल में हैट्रिक हो जाएगी. उन्होंने पहले तनु मनु, फिर रांझना और फिर अब ये फिल्म. तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतने कम उनकी फिल्मोग्राफी है और इतने अच्छी ही सारी फिल्में ही अच्छी बनाई हैं. माधवन और कंगना, आप दोनों से सवाल है मेरा कि फिल्म ऑलरेडी सुपरहिट है, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्म देख रहा है तारीफ कर रहा है, तो क्या अब पार्टी की तैयारी अभी से शुरू हो रही है? हाँ, हम लोग तो इस फिराक में रहते हैं कि कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए पार्टी करने का, अपने दोस्तों को मिलने का, क्योंकि मिलना इतना हो नहीं पाता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. लेकिन जो होगा इन टाउन या जो फ्री होंगे उनको हम लोग डेफिनेटली मिलना चाहेंगे और उनको एंटरटेन करना चाहेंगे. हम उनके साथ अपनी जो खुशियां हैं शेयर करना चाहेंगे. तो पार्टी तो बनती है. माधवन, पार्टी तो हो चुकी, अभी तो मतलब 2 दिन से हम जो दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम इनकी खूबसूरत, कंगना जी के घर है जो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, वहां पे ऑलरेडी हमारी पहली पार्टी हो चुकी है. और मुझे लगता है कि जिस तादाद में ये पार्टी बढ़ेंगे वो थोड़ा जो है ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लोग आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा मजा भी आएगा. अच्छा, तनु वेड्स मनु के बाद, रिटर्न्स के बाद कोई थर्ड पार्ट आने का इरादा है? जो क्या नया नाम होगा, क्योंकि अब तो ये सुपरहिट हो चुकी है फिल्म? वैसे तो रिलीज नहीं हुई है फिल्म अभी, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और लगता है ऐसा ही हो जाएगा. और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, और मैं चाहूंगी कि चाहे मैडी के साथ काम करूं या आनंद जी के साथ काम करूं, एक फ्रेश रोल मुझे और ज्यादा बड़ा चैलेंज मिले, तो वो मेरी उम्मीद रहेगी.
एक और सवाल है आप लोगों से कि पीकू की रिलीज के बाद काफी दिनों का गैप आया है, तो आपको लगता है कि अब फिल्म के लिए काफी अच्छा होगा, लोगों को एक डिफरेंट फिल्म देखने को मिल जाएगी और पीकू काफी धमाल मचाए, लेकिन रणवीर की बात करें, रणवीर कपूर की बात करें तो उनकी फिल्म इतनी खास नहीं कर पाई है, लेकिन आपकी फिल्म काफी लोगों को पसंद आ रही है, प्रोमोज हो गए, गाने हो गए, तो ये अच्छा टाइमिंग है आप लोगों की फिल्म की रिलीज के लिए? आप संक्षेप में पूछेंगे सवाल, मैं समझा नहीं। फिल्म पीकू की बात रिलीज हुई, हाँ, और उसके काफी गैप हो गया है अब हाँ फिल्म जी। के बाद, तो आप लगता है कि पीकू को छोड़कर अब आपकी फिल्म को लोग मतलब सही समय पर रिलीज किया जा रहा है? जी, तो हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए जो कि हम लोग मोर कंगना है, हम तो यही चाहेंगे कि जितनी फिल्म्स रिलीज हों सब सुपरहिट हो जाएं और बहुत ढेर सारे पैसे इस इंडस्ट्री में आए ताकि लोग ढेर सारे पैसे हमें दें। पर अगर कोई फिल्म चलती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो सबको उससे नुकसान होता है। और जहां तक पीको का सवाल है, वो बहुत अच्छी तरह चल चुकी है, कुछ और फिल्म नहीं चले हैं, पर इस फिल्म के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि हर वक्त हम 2 कदम आगे हैं। पिक्चर जब बनी नहीं थी लोगों ने कहा कि बन गई, जब खत्म नहीं हुई थी तब उन्होंने कहा कि सेंसर हो गई, जब सेंसर नहीं हुई तब मैं खुद डबिंग करा तो उन्होंने कहा रिलीज आ गया, अब कह रहे हैं कि हिट है, सुपर हिट है, अब तो रिलीज तो हो जाए पिक्चर। पर मुझे लगता है कि वक्त सही होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 2 clear weeks before a big film comes. Hope we make a lot of money. कंगना, नेशनल अवार्ड, अब उसके बाद तन्वज मनु रिटर्न्स, क्या एक्सपेक्टेशन है? जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आई थिंक उससे ज्यादा ही रिस्पांस मिल रहा है, और सब फिल्म को इतना सराह रहे हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस को, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई चाह सकता है। अभी जो भी रिव्यूज आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा सराहना मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। हाय कंगना, हाय मैडी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बॉलीवुड में अनकन्वेंशनल जोड़ियां बन रही है और बहुत ज्यादा हिट हो रही है। लाइक पीकू को ले लो, इरफान, दीपिका, आयुष्मान, भूमि पेडनेकर, आलिया, रणबीर हुड्डा, तो ऐसी कौन सी जोड़ियां है जो आप उन्हें पर्दे पर देखना चाहोगे आने वाली फिल्मों, आने वाली मूवीज में? ऐसी कौन सी जोड़ी होगी? आई थिंक मेरी और इरफान खान की। एंड व्हाट अबाउट यू मैडी? मेरी और सनी लियोनी की। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। देखो लड़के ताली बजा रहे हैं यार, अच्छा है। थैंक यू।